gonna start. I see के initiate हो गया है. So if you're not comfortable with showing your video या अगर आप अपनी audio share करने में comfortable नहीं है, so that's completely fine. You can just message in the chat section and we'll read your message out loud. So the purpose of doing this session is that we understand कि solution challenge क्या है, because I understand कि बहुत सारी ambiguities हैं, clarity नहीं है कि इसकी timeline क्या है, ये important क्यों है, और इससे इसमें participate करने से क्या फ़ायदा होगा to all of you as individuals. So हम इसका थोड़ा सा introduction करेंगे, then we will go over what technologies you can use to actually become a part of this program, and we will also understand कि इसमें successful होने की जो recipe है वो क्या है. So I would recommend that if you have a notebook right next to you, please keep that ready so that you can make notes. It will be very very important. Website पे ये information already available है, लेकिन जो चीज़ें ज़्यादा important है हम उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा stress करेंगे. Also because हम पाकिस्तानी audience को cater करें, I will be using a mix of English and Urdu so that communication clear हो. अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ बोल रही हूँ या slow बोल रही हूँ, तो you can just message in the comment section. I have that open. तो मैं साथ साथ आपको आपकी जो ambiguities हैं उनको clear भी करती जाऊँगी. So I wanted to start off with the video which I hope will play. Wonderful, thank you Umar. ये वीडियो आप में से बहुत सारे लोगों ने पहले देखी होगी, लेकिन आई वांट कि हम इसको एक दफ़ा दोबारा देखें टू अंडरस्टैंड कि हम यहाँ पे क्यों हैं. Excellent, wonderful. I hope कि ये प्ले हो जाए. Otherwise I'm just gonna drop a link of this. Oh, it's playing. Wonderful. I originally belonged to a town in Pakistan called Hyderabad. While I was growing up, I used to see people working on these magical boxes called computers. I used to get fascinated by it a lot because you could actually use it for talking to people around the world or play games. But while I was growing up, I used to see a lot of men using computers. So I wondered if technology is for men only. My dad encouraged me to pursue computer science so I could learn about the world of technology. Computer science in Pakistan is a field predominantly with men. So I was surprised to find out that I was one of the only two girls in my entire class. And despite getting good grades and being very active in academic activities, it was difficult for me to find that confidence to lead. Suddenly one day, I found out about this program by Google called the Developer Student Clubs and mustered the courage to apply as a lead for my university. I simply couldn't believe the day I received the acceptance email. Being selected as a DSC lead not only connected me with several Googlers or industry experts, but also helped me build connections with students globally. The most memorable experience was connecting with the DSC leads from across Pakistan and getting a deep dive into Google technologies through a lens of a community builder. DSC had me think about all the incredible people, personally and professionally, I wouldn't have met, and friendships I wouldn't have had if it wasn't for the community. I learned the art of interacting with people, pitching my ideas at hackathons, working with stakeholders, and also problem solving, which not only helped me win 2 national hackathons, but also the DSC signature competition, the Global Solutions Challenge. I believe DSC is just a start. It helped me connect with myself in ways I could have never imagined. I hope that young girls everywhere can step up to create their own opportunities in the position of leadership. And that's the cultural shift I want to bring in Pakistan. Because saying yes is the best thing you can do for yourself. Good. So I hope that you enjoyed the video. I know कि बीच में वो echo हो रहा था. I apologize for that. So ये वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि you understand कि पाकिस्तान में DSC, GDSC जो हमारा प्रोग्राम है वो 2019 में पहली दफ़ा आया था.
Krinza was a lead that we had from Karachi who was representing Fast Karachi at that time. Krinza participated in the solution challenge and she won the first prize globally. So इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में we have amazing talent. आप लोगों में से भी कोई होपफुली इस साल में जीत सकता है. सो द अपॉर्चुनिटी इज एंडलेस. एंड नाउ क्रिंजा को गूगल में जो डेवलपर स्टूडेंट प्रोग्राम की जो टीम है उसमें हर बंदा जानता है. दे आर वेरी प्राउड ऑफ हर. The work that she has done, the solution that she has created a lot of impact. और वो करंटली भी उसके ऊपर काम कर रही हैं. सो द आइडिया इज़ कि हम ऐसी चीज़ें बिल्ड करें जिसको हम फ्यूचर में आगे लेके ला सकें. So just to introduce what Developer Student Club does और Solution Challenge क्या है, it's a global level hackathon. और इस hackathon के अंदर आपने यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल गोल्स होते हैं, इनको UNDP के गोल्स कहा जाता है. सस्टेनेबल गोल्स 17 हैं ये इन टोटल. आपने उनमें से कोई एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेनी है और उसके ऊपर सोल्यूशन बिल्ड करना है. वो सोल्यूशन वेब भी हो सकता है, वेब बेस्ड हो सकता है, ऐप बेस्ड हो सकता है, लेकिन यू हैव टू यूज गूगल टेक्नोलॉजी टू बिल्ड दैट सोल्यूशन. सो सिंपल टर्म्स के अंदर एक हैकाथॉन है जिसमें आपको 17 एरियाज डिफाइन किए हुए हैं. उनमें आप एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें और गूगल की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए उसका कोई सोल्यूशन बिल्ड करें. ये सोल्यूशन फिर एवेल्यूएट होगा, इसकी रेटिंग दुनिया भर के कंपटीशन दुनिया भर की टीम्स के साथ compete होगा और टॉप 50 सेलेक्ट होंगे. टॉप 50 के बाद टॉप 10 सेलेक्ट होंगे एंड देन वी विल हैव द फाइनल विनर्स. So it's an excellent opportunity for everyone because इसमें आपको कहीं ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन सिट इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन. ऑल यू हैव टू डू इज़ कि आपने एक GDSE चैप्टर के साथ एसोसिएटेड होना है एंड यू कैन टेक पार्ट इन इट. सो आई थिंक इट्स एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी. अगर मैं स्टूडेंट होती और इस तरह की अपॉर्चुनिटी के बारे में मुझे पता होता तो आई वुड हैव डेफिनेटली पार्टिसिपेटेड इन समथिंग लाइक दिस. सो मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस प्ले नहीं करूँगी सो दैट हम ज़्यादा जो है लेटर इसके बारे में डिस्कस कर सकें. एंड आई वुड लव टू हियर सम ऑफ योर आइडियाज़ एज वेल. तो मैंने कुछ चीज़ें जो कि इम्पोर्टेंट हैं वो हाईलाइट की हैं सो दैट यू कैन टॉक अबाउट इट. सो ये ज़रूरी क्यों है? बहुत सारे बच्चों ने मुझसे ये सवाल पूछा कि इसमें हमें पार्टिसिपेट करके क्या फ़ायदा होगा. चांसेस ऑफ विनिंग तो इतने कम हैं बिकॉज इतनी सारी टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं. सो आई थिंक द मेन पर्पज ऑफ मी कमिंग हियर एंड टॉकिंग टू यू इज़ द फैक्ट दैट इफ क्रिंजा कैन विन, एनी ऑफ यू कैन विन. फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड इंटरनली, जितनी भी हम डिस्कशंस देखते हैं, पाकिस्तान को हम ग्लोबल लेवल के ऊपर देखते हैं तो हमारी टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग है. आवर किड्स आर एक्सलेंट. स्टडी जैम्स हो गए जिसमें क्लाउड सीखो हो गया, एंड्रॉयड सीखो हो गया. द रिस्पॉन्स दैट वी गेट फ्रॉम ऑल ऑफ यू इज़ अमेजिंग. which means कि we have the skill set, we just need to position it right और हमने उसको पैकेज सही तरीके से करना है कि अगला बंदा हमारे जो solutions हैं और जो हम propose करें उसको समझ सके. तो it's an opportunity कि आप घर बैठे बैठे अपना talent जो है वो global level के ऊपर portray कर सकते हो. And of course you can represent your country as well. So it's a big thing when Pakistan highlights on this forum and they understand कि अच्छा पाकिस्तान में इतना ज़्यादा talent available है. उसके अलावा it will also help you polish your technical and non-tech skills as well. इसमें there are multiple content tracks that we have. So if you want to polish your skills, for example आपको लगता है Android में आपने थोड़ा सा skill set develop करना है या Flutter में कोई चीज़ ज़रूरी है तो आप अपने GDSE lead को contact करो. उनके पास content tracks available and they can help you polish these skills a lot better. इसके अलावा बिकॉज वी वांट टू मेक श्योर कि हम पाकिस्तान के टैलेंट को हाईलाइट करें, वी ऑल्सो हैव अ प्लेटफॉर्म अवेलेबल फॉर यू जिसमें आप बेस्ट ट्रेनर्स और मेंटर्स के साथ काम करोगे. और बेशक ये आइडिया जो है इज़ दैट समथिंग दैट कम्स फ्रॉम अ पर्सनल मोटिवेशन या कोई ऐसी चीज़ है जो आप बिल्ड कर रहे हो सिर्फ इसके लिए, आप इन मेंटर्स और ट्रेनर्स को यूज़ कर सकते हो टू रियली बेनिफिट योर आइडिया. यूजुअली ये लोग इतने बिजी होते हैं, आई अंडरस्टैंड कि हर किसी के पास इनका एक्सेस नहीं होता. तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप वो आइडिया और जो भी आप सोल्यूशन जिस पे काम कर रहे हो आप उसको पॉलिश कर सको, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऑफ कोर्स यू आर बिल्डिंग समथिंग एट द एंड ऑफ द डे. जब आप इसको कंप्लीट कर लोगे तो आपके पास एक प्रोडक्ट या एक सर्विस बेस्ड चीज़ रेडी होगी. दैट इज़ समथिंग जिस पे आप इवेंचुअली अपना बिजनेस भी फॉर्म कर सकते हैं या फिर आप उसको नॉन प्रॉफिट वे में उसको पब्लिश कर सकते हो. यू कैन शो इट ऑन योर रेज्यूमे कि दिस इज समथिंग आई हैव डन. I have helped a lot of students जिन्होंने solution challenge के project को अपने resume में portray किया and they landed jobs only because of that. Because companies really like the fact कि आप अपनी पढ़ाई के अलावा
और बहुत सारी मल्टीपल चीज़ों के अंदर इंटरेस्टेड हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये आपकी प्रोफाइल हेल्प करने में भी आपको हेल्प करता है. ऑल्दो विनर्स वी विल ओनली हैव टॉप 3, आई प्रॉमिस यू दैट यू आर रियली गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम दिस. तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको हम एंड पे अभी वी विल डिस्कस देम. ये बहुत जेनेरिक एक सवाल है, इसको भी हम एंड पे एड्रेस भी करेंगे, ठीक है. So the purpose is that you have a lot of fun while doing this. Our leads are super fun. We have a really interesting, fun batch of 61 people. Interact with them. उनका सर खाएं, मेरा सर खाएं. Let's work together to really highlight Pakistan on this forum. So इसका फॉर्मेट मैं आपको थोड़ा सा बता चुकी हूँ. जो टॉप 3 विनर्स हैं, दे विल विन सम रियली इंटरेस्टिंग स्वैग पैक फ्रॉम गूगल. और इस साल इन्होंने जो एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की है वो ये है कि यू विल गेट कैश प्राइजेस. And cash prizes are like roughly $3,000 जो है वो per team member को मिलता है. So if you have 3 team members, it's going to be $9,000. And उसके साथ साथ आपको ब्लॉग पोस्ट पे फीचर मिलता है. जब आप ब्लॉग पोस्ट पे फीचर होते हो, वैसे ही पूरी दुनिया के ऑडियंस आपके सोल्यूशन को देखने आ जाती है. हमारे पिछले एक्सपीरियंस में मैंने ये भी देखा है कि कुछ पाकिस्तानी टीम्स जो कि टॉप 10 में नहीं गई, लेकिन बिकॉज उनके आइडियाज़ इतने अच्छे थे, कुछ स्टार्टअप कंपनीज ने उनके आइडियाज़ को उनके साथ उस पर काम करना शुरू कर दिया था. तो शहजाद, आई टेक क्वेश्चंस इन अ बिट. जस्ट रेज योर हैंड एंड वी विल टॉक अबाउट इट इन अ बिट एज वेल. अगर आपका कोई बहुत अर्जेंट सवाल है तो आप उसको चैट सेक्शन में ड्रॉप करते हैं. हम फिर एंड पे जो है एक डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, ठीक है. सो इसी तरह से इसका राउंड ये होता है. इसकी टाइमलाइंस पे भी मैं अभी थोड़ा सा आगे आऊँगी कि कौन से स्टेज पे कितनी अनाउंसमेंट्स होती हैं. So this is basically the overall structure, very simple. You can also find this on the website. So I wanted to highlight, this slide that the team has put together, which really shows कि participants ने उनका पुराना experience कैसा था. और ये highlight करने का main मकसद ये था कि आप ये देखो कि technology areas कौन-कौन से हैं. So there are teams who have used Android, Flutter, Cloud, Firebase, TensorFlow. तो आप जिस भी background से आ रहे हो, it doesn't matter. अगर आपने कोई गूगल टेक्नोलॉजी जो आपकी इंटरेस्ट की है, आप उसको पिक कर सकते हो. इट कैन ऑल्सो बी मोर देन वन टेक्नोलॉजी. आई थिंक कि आप जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज यूज़ करेंगे और उनको लॉजिकली यूज़ करेंगे, उतना आपका आर्ग्यूमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. सो जस्ट अ फ्यू टेस्टिमोनियल्स, आई एम नॉट गोइंग टू गो ओवर दैम, लेकिन पर्पज़ ये है कि यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड. सो थिंक ऑफ योर सोल्यूशन आउटसाइड द बॉक्स. सबसे पहला जो आपने जिस चीज़ के बारे में सोचना है इज़ योर कंज्यूमर, इज़ योर कस्टमर, जिसको आप टारगेट कर रहे हैं. बेशक आप हेल्थ में ऐप बना रहे हो, जिस कैटेगरी में भी बना रहे हो, आपका सोल्यूशन जो है वो आपके कस्टमर को सबसे पहले केटर होना चाहिए. टेक्नोलॉजी उसके बाद आती है कि आप कैसी टेक्नोलॉजी यूज़ करके अपने कस्टमर को कंफर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं. सो ये जजिंग क्राइटेरिया है. दिस इज़ बेसिकली व्हाट you will be evaluated on. ये solution challenge की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, लेकिन आई वांट कि हम इन क्वेश्चंस को एक दफ़ा इन डेप्थ वन बाय वन करके स्टडी करें. एंड आई विल प्रोवाइड मोर डिटेल्स ऑन ईच ऑफ दीज. सो इफ़ यू हैव अ नोटबुक तो यहाँ पे आप नोट्स बना सकते हैं. उससे पहले मैं क्विकली एक चीज़ जो है वो शेयर करना चाह रही थी. आई एम जस्ट गोना स्विच माई स्क्रीन. सो सोल्यूशन चैलेंज की जो वेबसाइट है उस पर आपको 17 सस्टेनेबल गोल्स जो हैं वो मिल जाएंगे. आई वांटेड कि हम उनको एक दफ़ा क्विकली देख लें. हमारा नेक्स्ट सेशन जो है वो हर गोल के बारे में इन डेप्थ डिस्कशन भी होगी, लेकिन अगर आप नेक्स्ट सेशन अटेंड नहीं करें तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो मेन ऑब्जेक्टिव इन गोल्स का ये है कि आप एक कंट्री में ओवरऑल पॉवर्टी को एंड करें और लिविंग कंडीशंस को बेहतर करें. क्विक समरी. इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स आते हैं. सो यू विल सी कि पॉवर्टी इज़ वन थिंग. अगर आप हंगर को रिड्यूस करने के लिए कोई आइडिया आपके पास है, यू कैन वर्क ऑन दैट. हेल्थ एंड फिटनेस, which comes in health tech. Ed tech, which is another term that we have heard. Quality education, gender equality. Gender equality किसी भी स्पेस में हो सकती है. Clean water and sanitation, which is very very important for good living. अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी. आप लोगों ने देखा होगा पाकिस्तान में आजकल सोलर ट्रेंड बहुत ज़्यादा आ गया है, उससे रिलेटेड कुछ हो सकता है. इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो सकती है. यू कैन लिंक दिस टू कोविड कि आफ्टर कोविड आपकी कंट्री में इकोनॉमिक डाउनफॉल आया था. आपके पास ऐसे कौन से सॉल्यूशंस हैं जो कि इसको हेल्प कर सकते हैं. इट कैन बी बेस्ड ऑन इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स के ऊपर आप काम कर सकते हो जो कि ओवरऑल इंडस्ट्री को इम्प्रूव करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट अवेलेबिलिटी, स्मार्टफोन अवेलेबिलिटी, इस तरह की चीज़ों पे भी काम किया जा सकता है. रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़ के
विद इन योर, यहाँ पे ये अमंग्स कंट्रीज बात करें, लेकिन आप विद इन योर कंट्री इनइक्वालिटी के बारे में भी एड्रेस कर सकते हो कि मे बी यू थिंक कि लोग जो अर्बन सिटीज़ या टियर 1 सिटीज़ में हैं उनके पास ज़्यादा एक्सेस है, जो रिमोट एरियाज़ हैं उनके पास एक्सेस कम है, तो शायद आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट कोई इस तरह का सोल्यूशन हो कि जो सब लोगों को एक लेवल के ऊपर केटर करे. सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, अगेन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट द करंट टाइम कि आप सेफ्टी किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं. नाउ दैट योर पीपल आर मूविंग फ्रॉम रिमोट एरियाज टू अर्बन सिटीज़, मे बी यू हैव अ सोल्यूशन जो उसको केटर करे. उसके बाद फिर दूसरा ये कि ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, कि आप जो चीज़ें ले रहे हैं वो सस्टेनेबल ही हैं. आजकल देयर इज दिस ह्यूज ट्रेंड कि आप यू से कि आई एम लिविंग ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, या मैं बहुत केयरफुल हूँ इन टर्म्स ऑफ व्हाट आई कंज्यूम. सो मे बी यू आर बिल्डिंग अ प्रोडक्ट जो कि इसके अंदर आता है. सो अगेन टू मच टू कवर. हर चीज़ के बारे में इन डेप्थ इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगी. नेक्स्ट सेशन में हम उसको कवर भी करेंगे. लेकिन आई हाईली रिकमेंड कि जब आप कोई सोल्यूशन बिल्ड कर रहे हैं तो आप पहले फिगर आउट करें कि वो कौन से गोल के अंदर आइडेंटिफाई होता है, और फिर उस गोल को अच्छे तरीके से स्टडी करें. क्योंकि जितना आप स्टडी करोगे उतना आप अपना सोल्यूशन इसके हिसाब से केटर कर सकते हैं. और जब आप उसको उतना कस्टमाइज करेंगे तो जो आपके जजेस हैं उनको वो अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट यू आर सेइंग मेक्स सेंस एंड इट्स समथिंग दैट इज स्केलेबल. यूजुअली जब आपने किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर सोल्यूशन बनाना होता है तो आपको रिसर्च देनी पड़ती है कि दिस इज़ व्हाई आई एम बिल्डिंग दिस, और ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट इसलिए है. तो आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है रिसर्च के लिए. जब आप इनमें से कोई एक गोल पिक करते हैं तो आपका रिसर्च का आधा काम वैसे ही हो जाता है, बिकॉज यूएनडीपी ने आपके लिए आपको गोल्स डिफाइन कर दिए हैं. जब आप इसकी डेप्थ में जाएंगे आपको रिसर्च डेटा सब कुछ सपोर्टेड मिलेगा. सो यूज दैट डेटा स्मार्टली. हम वैसे पाकिस्तान जो है वी आर वेरी गुड एट जुगाड़्स, राइट. हम बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को यूटिलाइज करते हैं और उनके डबल मीनिंग्स भी निकाल लेते हैं. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो डेटा आपको दिया हुआ है उसको आप कैसे यूटिलाइज करते हो अपने आर्ग्यूमेंट में और अपनी पिच में. सो नाउ आई एम गोइंग टू गो बैक टू माई ओरिजिनल प्रेजेंटेशन एंड आई हैव हाईलाइटेड कि इनमें से हर एस्पेक्ट में कौन सी चीज़ क्यों ज़रूरी है, राइट. सो दो चीज़ें हैं. पहला है इम्पैक्ट, कि आपका जो काम आप कर रहे हैं या जो सोल्यूशन आप दे रहे हैं वो लोगों को किस तरह से फ़ायदा पहुंचाएगा. और दूसरा है टेक्नोलॉजी जो आप यूज़ करें. अगर आप इसकी स्कोर की परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन देखो तो इम्पैक्ट को 60% स्कोर दिया गया है, विच मीन्स कि आपका सोल्यूशन अगर अपनी ऑडियंस को केटर कर रहा है तो 60% स्कोर तो आपका वहीं पे हो जाता है. टेक इज़ अनदर एस्पेक्ट, और टेक को भी हम कवर करेंगे. लेकिन इफ़ यू आर ऑल स्टडिंग इन यूनिवर्सिटीज, अगर आपका टेक बैकग्राउंड है या आपकी टीम में कोई ऐसा है हु कम्स फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड, तो दिस इज समथिंग जो कि आपको ऑलरेडी कवर हो जाता है. So I'll go over one question like in depth and then फिर बाकी quickly cover कर लेंगे. So पहला तो यही है कि आपने क्या clearly identify किया है कि UNDP का कौन सा गोल है जिस पे आप काम करें. I am personally mentoring a lot of teams और ये सबसे obvious बात है लेकिन ये सबसे ज़्यादा lacking है कि उनको ये नहीं पता चल रहा कि वो UNDP के कौन से गोल में relate कर रहे हैं. अगर आप ये प्रूव नहीं कर सकेंगे दिस इज गोइंग टू बी अ डायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन, बिकॉज ये हैकाथॉन का मेन ऑब्जेक्टिव है. सो अंडरस्टैंड करें कि आप कौन से में फिट होते हैं. हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा में कैटेगराइज हो रहे हो, वो वाला पिक करो जो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है. दैट विल गेट यू अ हायर स्कोर. The second is, have you, effectively addressed the problem statement that you're talking about? Which means कि क्या जो आप solution दे रहे हैं वो आपके problem statement को support कर भी रहा है या नहीं कर रहा. Problem statement identify करते हुए it's very important to highlight कि आप कौन से segment के लिए ये solution build कर रहे हैं. So आपकी target audience कौन सी है. एक बिजनेस में जब हम बिजनेस केटर करते हैं हम सबसे पहले कस्टमर आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मेरा कस्टमर होगा. सिमिलरली आपने भी आइडेंटिफाई करना है कि ये वो इंसान होगा जिसके लिए मैं ये सोल्यूशन बना रही हूँ, ये वो सेगमेंट है इस कम्युनिटी का. सेकेंड जो थर्ड क्वेश्चन है वो है कि क्या आप नेक्स्ट स्टेप्स प्रोवाइड कर रहे हैं. अगर आप आज एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आप क्या कल एप्लीकेशन में फर्दर फीचर्स की डिस्कशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे. या आज अगर आप 18 to 20 के सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं तो क्या आप आगे जाके 20 से 25 ईयर्स ओल्ड को भी टारगेट करेंगे या नहीं करेंगे. तो उसका मकसद ये है कि अगर इसको आप एक बिजनेस बनाते हैं या इसको आप एक प्रोडक्ट बनाते हो तो स्केलेबिलिटी कैसे होगी, इसको बढ़ाया कैसे जाएगा. पाकिस्तान में अगर आप
आजकल आपने देखा होगा कितने सारे स्टार्टअप्स को पैसे भी मिल रहे हैं, फंडिंग्स भी मिल रही हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बिजनेस माइंड से जो भी लोग आते हैं वो ये सवाल पूछते हैं कि इसको स्केल कैसे करोगे, इसकी ऑडियंस कैसे बढ़ाओगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑलरेडी थिंक अबाउट दैट। उसके बाद ये कि यू शुड हैव योर सोल्यूशन टेस्टेड विद रियल यूजर्स। इसका मतलब ये है कि सोल्यूशन आपने एक्चुअली में बिल्ड करना है। कुछ लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा था कि क्या हमने सिर्फ वायर फ्रेम्स देने हैं या हमने सोल्यूशन क्रिएट करना है। सो सोल्यूशन आपने क्रिएट करना है। जितनी ऑडियंस के साथ आप टेस्ट करेंगे, जितना डेटा आप प्रोवाइड करेंगे कि दिस वर्क्स, the more successful your solution is going to be. And of course I think it's also important to understand कि आप ये शो करें कि जब हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो टेस्टिंग से जो हमें फीडबैक मिल रहा है क्या हम उसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, और अगर हम अभी नहीं कर रहे तो हम नेक्स्ट स्टेप्स में कैसे करेंगे। सो अगेन यहाँ पे एक वही जुगाड़ वाली बात आ गई है कि क्वेश्चन 5 का आंसर अगर है, फॉर एग्जांपल लोग ये कहते हैं कि अच्छा आपके सोल्यूशन में ये चीज़ें होनी चाहिए और आपके पास करंटली टाइम नहीं है उनको इनकॉर्पोरेट करने के लिए, तो आप उसको क्वेश्चन 3 के आंसर में रिलेट कर दें कि हम नेक्स्ट स्टेप्स में ये करेंगे बेस्ड ऑन द फीडबैक। सो दे विल अंडरस्टैंड कि आपने फीडबैक को रिकग्नाइज भी किया और आपने लॉन्ग टर्म प्लान भी बना लिया। टेक्नोलॉजी अगर हम साइड पे देखें तो आई थिंक सबसे पहला जो मेन ऑफ कोर्स वो है कि आप टेक्निकल कंपोनेंट्स को रिलेट करें। मैं इसको सब क्वेश्चन को समराइज कर देती हूँ कि आप गूगल टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं और सही वाले यूज़ कर रहे हैं या नहीं, और आपकी गूगल टेक्नोलॉजी के पीछे रीजनिंग क्या है। अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, उसकी टेक्निकलिटीज़ कहाँ पे आती हैं एंड व्हाई डज इट बेनिफिट यू। अगर आप फ्लटर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी क्या रीजनिंग है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा ये कि ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जो आपका सोल्यूशन है वो अपने वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू एड्रेस करना होगा, क्या वो यूज़र फ्रेंडली है या नहीं है। अगर मैं एज अ लेमैन आपकी एप्लीकेशन या आपके वेब बेस्ड पोर्टल पे जाती हूँ और एक्सप्लोर करती हूँ तो क्या मुझे विदाउट एनी गाइडेंस मैं A to Z चली जाऊँगी या मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी। और ऑफ कोर्स उसमें फिर यही चीज़ आती है जो मैंने अभी पहले भी ये बात की थी कि अगर आप कोई गूगल टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, ये रीजनिंग आपने देनी है। हैज़ द टीम मेड इफेक्टिव प्रोडक्ट एंड टेक्निकल डिसीजंस। मे बी कोई ऐसी चीज़ है, फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म में आप एप्लीकेशन बनाते हैं और आप कहते हैं जी हम इसका डेटा मेजर करेंगे और बेस्ड ऑन आर डेटा एंड द एनालिसिस दैट वी आर गेटिंग हम ये फीचर्स इंट्रोड्यूस करेंगे। तो वो डेटा आप कैसे लेके आएंगे, वो डेटा आप फायरबेस के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं। सो इस तरह के डिसीजंस आप कैसे रीजन करते हैं, दैट्स व्हाट द टीम वांट्स टू सी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। कुछ चीज़ों को मैंने इन डेप्थ इसीलिए डिस्कस किया सो यू अंडरस्टैंड कि उसको आपने रिलेट कैसे करना है। आई फील लाइक पाकिस्तान में हमारे पास सॉल्यूशंस बहुत अच्छे आते हैं लेकिन हम जहाँ पे मार खा जाते हैं इज द फैक्ट कि हम उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं। तो अगर आप इस एस्पेक्ट को लोगे और अपनी टीम के साथ इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करोगे, हमेशा अपनी मीटिंग्स में ये चीज़ें सबसे पहले हाईलाइट करो, तो आई थिंक आपकी प्रेजेंटेशन खुद ही राइट शेप ले लेगी। So yeah, this is just a quick run through of what the judging criteria will look like. इसमें कुछ लोगों का आई एम नॉट टू श्योर कि आप सारे किसी GDSE चैप्टर के थ्रू आ रहे हो या फिर यू जस्ट हर्ड अबाउट इट एंड यू हैव जॉइंड। सो इसमें इफ़ यू आर नॉट एसोसिएटेड विद द चैप्टर एट द मोमेंट, आप फाइंड आउट करें कि आपकी यूनिवर्सिटी में चैप्टर है या नहीं है। आप वेबसाइट पे भी देख सकते हैं कि कौन कौन से हमारे पास चैप्टर्स हैं। Otherwise, you can find a team member who is associated with the GDSE chapter, so that आपकी association एक proper route के through आ रही है। Then you have to form a team. अभी मुझे एक question आया था. In fact, I'm just going to quickly look at it. I think I have to scroll back up. I think it was around the fact कि team आपकी जो है ना, आपको team members नहीं मिल रहे या you can't find the right people. So currently मैं अभी सिर्फ डेटा देख रही थी, अगेन दिस इज फॉर इंटरनल यूज बट आई वांट टू शेयर इट विद यू कि करंटली हमारे पास 200 टीम्स ने पाकिस्तान में साइन अप कर दिया है ऑलरेडी सोल्यूशन चैलेंज के लिए। इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर इंटरेस्टेड। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही यूनिवर्सिटी के लोगों को ढूंढेंगे। इफ़ यू कांट फाइंड समबडी इन योर कैंपस, रीच आउट टू योर GDSE लीडर एंड टेल देम कि हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हाउ कैन वी फाइंड द राइट टीम मेंबर्स। वो होपफुली आपको और लोगों से कनेक्ट कर देंगे बिकॉज उनको बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई होती हैं। रीच आउट टू मी, आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल हु आर इंडिविजुअल्स लेकिन वो सबमिट करना चाहते हैं, आई कैन कनेक्ट यू एज वेल। दूसरा, सोशल मीडिया इज़ योर बिगेस्ट प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया पर जाएं, इनको कहें जी दिस इज़ माई
आइडिया, मैं सोल्यूशन चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे इस एक्सपर्टीज़ के लोग जो हैं वो चाहिए, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड जस्ट रीच आउट टू मी। सोल्यूशन चैलेंज का हैशटैग यूज़ करें, जितने लोग भी हैशटैग फॉलो कर रहे हैं वो आपकी पोस्ट भी देखेंगे, और आपकी पोस्ट भी देखेंगे तो आपको रीच आउट भी करेंगे। सेलेक्टिंग द राइट टीम, इसके ऊपर वी विल डू अनदर डिटेल्ड सेशन कि आपकी राइट टीम कौन सी होनी चाहिए। लेकिन फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस इज ऑलवेज गुड कि यू फाइंड समबडी हु हैज़ अ टेक्निकल बैकग्राउंड and you find somebody who doesn't have a technical background, और आप mixture of people create करें। जब भी आपकी टीम में diversity होगी, आप different aspects को cover करोगे, आपके पास different point of views आएंगे और वो आपके solution को ज़्यादा strong करेंगे। जब फाइनल आपकी पिच होती है, जब टॉप 10 टीम्स अपनी पिचेस करती हैं, तो उसमें जो जजेस होते हैं दैट्स ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। तो गूगल हमेशा इंश्योर करता है कि टेक्निकल के साथ साथ डेवलपर रिलेशंस का भी कोई बंदा हो, कम्युनिकेशन का भी हो। सो इट्स ऑलवेज अ मिक्सचर ऑफ पीपल। तो अगर आपकी टीम भी वो मिक्सचर पोर्ट्रे करेगी तो आप उन क्वेश्चंस को स्ट्रांगली आंसर कर सकेंगे। उसके बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं इसको स्ट्रेस इनफ नहीं कर सकती कि अगर आप सोल्यूशन बना रहे हैं तो फिगर आउट करें कि क्या आपकी ऑडियंस को सोल्यूशन की ज़रूरत है भी या नहीं है। डोंट बी अफ्रेड टू रीच आउट टू पीपल। अगर आपको लगता है कि आप डाउटफुल हो, आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस जो है वो ऑनलाइन है, उनको मैसेज करें, उनसे बात करें, गूगल फॉर्म के थ्रू डेटा कलेक्ट करें। यस आप किसी और यूनिवर्सिटी के चैप्टर के साथ भी एसोसिएट हो सकते हैं। इस पे भी अभी ये आगे एक सवाल, इसको हम केटर दोबारा करेंगे, लेकिन दिस इज पॉसिबल। आई बिलीव कि लास्ट ईयर हमारे पे जो एक टीम थी दैट वेंट इन टॉप 50, उसमें 3 यूनिवर्सिटीज़ के, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लोग थे। लेकिन वो एक GDSE चैप्टर के थ्रू रिप्रेजेंटेड थे। उसके बाद फिर जब आप सोल्यूशन बिल्ड कर लेंगे, सोल्यूशन को टेक्निकली इम्प्लीमेंट करने से पहले उसको पेपर पे ड्रॉ आउट करो, पेपर पे फिगर आउट करो कि क्या ये सोल्यूशन सेंस बना भी रहा है या नहीं बना रहा। हम बहुत जज्बाती होते हैं, बहुत कुछ अच्छा हमें लगता है फ़ौरन हम वी थिंक अच्छा लेट्स जंप इनटू इट। उसके वायर फ्रेम्स क्रिएट करें, देयर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स लाइक फिग्मा, उसको यूज़ करें, उसमें एक प्रोटोटाइप बनाएं और फिर देखें कि क्या ये इफेक्टिव है या नहीं है। हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, the submissions you have to submit by the end of March। लेकिन अगर आप हमारे साथ साथ जो हम ट्रेनिंग्स लेके आ रहे हैं उसके साथ पार्टिसिपेट भी करते जाएंगे, तो होपफुली यू विल हैव इनफ टाइम टू बिल्ड योर सोल्यूशन एंड टेस्ट इट आउट एज वेल। एंड डोंट बी अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चंस। हम अक्सर झिझक में हम लोगों से पूछते नहीं हैं कि क्या इसकी सेंस है या नहीं है। अब तक मुझे काफ़ी सारी टीम्स जिनके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है, देव गिवन मी देयर आइडियाज़, कुछ बहुत अच्छे थे, हमने उनको पॉलिश किया और उसको थोड़ा सा शशका ऐड किया, एंड आई टोल्ड देम कि अच्छा ये चीज़ें आप प्लस माइनस कर लें एंड इट विल वर्क। कुछ थे जो हमें लगा कि दे आर नॉट इफेक्टिव या यहाँ पे एक मसला आ रहा है, तो उन टीम्स ने फ्रॉम स्क्रैच दोबारा से ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन शुरू किया और अब उनके सोल्यूशंस जो हैं वो बहुत अच्छे भी हैं। सो don't be afraid to reach out to GDSE leads, to me, to other people जो हमारे trainers हैं, उनको reach out करें in the future so that they can help you। And I think अगर आप already Solution Fest के इस program का part बन गए हो, तो the best of the best will already help you out। Last side you can just see the dates that are important। So first and सबसे important जो date है वो ये है कि आपकी final submission 31st of March तक होगी। The date is not going to be extended। So if you think कि deadline extend हो जाएगी, that's not going to happen। I think कि अपने पास कुछ margin रख के 1-2 दिन पहले आपको solution ready होना चाहिए। Last minute तक इसको बिल्कुल मत छोड़ें। पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो last minute के लिए submission में होंगे। So I hope कि वहाँ पे कोई technical glitch ना आ जाए या कोई मसला ना आ जाए। So to be safe, you should already start working on it and start thinking about कि आपकी final video में क्या होना चाहिए। बाकी I think dates are नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, विद टाइम यू विल रियलाइज। लेकिन जुलाई के अंदर जो है वो अनाउंस होते हैं। एक बहुत मज़े का इवेंट होता है जिसका नाम है डेमो डे। पुराने डेमो डे की वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। अगर आप सोल्यूशन चैलेंज डेमो डे ढूंढोगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसमें टॉप 10 टीम्स कैसे प्रेजेंट करती हैं, उनको किस तरह के सवालात किए जाते हैं, उसमें वो सब चीज़ें अवेलेबल हैं। तो दैट्स अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस एज वेल। सो द ट्रेनिंग प्रोग्राम दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, ये क्या है और इसमें क्या क्या कवर होगा। सो हमारी GDSE के जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर वेरी एक्टिव। उन्होंने बहुत हार्ड कोर मेहनत करके आपके लिए एक प्रोग्राम बनाया है सो दैट जितने भी आपके सवाल हैं उनको हम इन डेप्थ कवर कर सकें। सो आई कैन गारंटी यू कि अगर आप इन ट्रेनिंग प्रोग्राम में 1 by 1 पार्टिसिपेट कर लेंगे
तो आपका जो मेन सोल्यूशन है और जो मेन क्वेश्चंस हैं वो आंसर हो जाएंगे. सो आई वुड इंकरेज कि अगर आप रोज़ नहीं आ सकते, अपने टीम मेंबर्स में ये सेशंस डिवाइड कर लें और मेक श्योर करें कि आपका कोई टीम मेंबर ये सेशन अटेंड करे. नेक्स्ट सेशन इज गोइंग टू बी यूएनडीपी के सस्टेनेबल गोल्स. हम कोशिश करें कि हम यूएनडीपी का ही कोई स्पीकर ले आएँ जो आपको डिटेल में बता सके. उसके बाद फिर कम्युनिटी प्रॉब्लम आपने कैसे ढूंढनी है, बिल्डिंग टीम क्यों ज़रूरी है, टीम में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए. उसामा इज़ अ पार्टिसिपेंट जो कि लास्ट ईयर टॉप टीम्स में गया था. ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम फास्ट. ही वॉज ऑल्सो अ GDSC लीड. तो वो आपको बताएंगे. उमर, ये क्वेश्चन मैं आपको एंड पे बताऊंगी ताकि आप एंड तक जो है वो क्यूरियस रहें कि स्वैग्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे. एंड्रॉयड हम कुछ जो टेक सेशंस जो ओवरऑल हम कवर कर रहे हैं उसमें फ्लटर एंड्रॉयड है, फायरबेस है, टेंसरफ्लो है. अगर आप इसके अलावा भी किसी टेक्नोलॉजी एरिया में काम करना चाहते हैं तो रीच आउट टू मी, आई कैन कनेक्ट यू टू समबडी. उसके बाद जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है वो 5th और 6th मार्च को डिज़ाइन स्प्रिंट होगी. तो ये डिज़ाइन स्प्रिंट आपको डिज़ाइन थिंकिंग में हेल्प करेगी और ये जो है ये गूगल की डिज़ाइन स्प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है. इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वर्कशॉप. ये हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है सो दैट आप आराम से उसको अंडरस्टैंड कर सकें और उसको इम्प्लीमेंट कर सकें. सो हाईली रिकमेंड दैट यू अटेंड दिस. UI/UX क्यों इम्पोर्टेंट है, यूज़र इंटरफेस. अगर आपकी चीज़ प्यारी लग रही है ना तो ऑटोमेटिकली पीपल विल बी कन्विंस्ड कि ये चीज़ अच्छी है. हम जनरली, हमारा ह्यूमन नेचर ऐसे है कि जो चीज़ अट्रैक्टिव होती है हम उसकी तरफ ज़्यादा हमारा रुझान होता है. सो वी हैव टू मेक श्योर कि इट्स सिंपल, इट्स अट्रैक्टिव एंड इट्स ईजी ऑन द आइज. उसके बाद फिर लास्ट पार्ट जो होगा वो ये होगा कि आप पिच कैसे करते हैं, आपने अगले बंदे को कन्विंस कैसे करना है कि आपका सोल्यूशन इफेक्टिव है. इसमें भी वी हैव समबडी हु इज़ वेरी वेरी गुड, who is excellent, who has trained hundreds of teams in NICs all over Pakistan in the art of pitching. Then we have Saad Hamid, everybody knows Saad. तो साद आपको ये बताएंगे कि जी आपका जो कस्टमर सेगमेंटेशन है उसमें आपने किसी एक के ऊपर फोकस करना है तो वो कैसे करेंगे. एंड ही विल ऑल्सो टेल यू द इम्पोर्टेंस ऑफ एप्लीकेशंस कि अगर आप ऐप बेस्ड सोल्यूशन बना रहे हैं तो उसको आप कैसे पिच कर सकते हो. उसके बाद फिर वी हैव लाइक फाइनल सेशन विच आई थिंक इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. हम यूजुअली थक जाते हैं, अभी रमज़ान भी आने वाला है तो वी विल बी अ लिटिल टायर्ड कि यार इतनी मेहनत कर ली है, लास्ट 5% कैसे किया जाए या 10% कैसे किया जाए. सो हिरा इज़ गोइंग टू हेल्प अस. हिरा वर्क्स एट NIC कराची, जो कि आपको ओवरऑल बताएंगी कि फिनिश लाइन तक कैसे पहुंचना है और जो फाइनल पॉलिश है आपके सोल्यूशन की है, सबमिशन की, वो कैसे करनी है. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशंस. नॉन टेक और टेक का मिक्सचर है. अगेन नॉट मैंडेटरी, सारे मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आपकी टीम में से कोई एक पार्टिसिपेंट हर सेशन में अवेलेबल हो. रिकॉर्डिंग्स हमारे पास हैं, कुछ हम पब्लिकली शेयर करेंगे, कुछ हम नहीं करेंगे. और इसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप गूगल डेवलपर एक्सपर्ट्स, GTG लीड्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, उन सबके साथ वन ऑन वन इंटरेक्शन कर सकते हैं. अच्छा जी, लेट्स सी. How can we make a team? We belong to virtual universities and we don't even know the course student. So Rahman, मैंने इस पर थोड़ा सा अभी पहले भी बात किया. There are many people who are looking out for teams. तो आप कोशिश करें कि आप अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करें कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, should we do this? If you post up, you can also tag me in it. I will also just help you connect with other people. आपके पास अगर GDSC लीड नहीं है तो बहुत सारे GDSC लीड्स हैं जो कि मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में उनके फ्रेंड्स भी हैं, नेटवर्क भी है. किसी GDSC लीड को रीच आउट कर लें. हमारे पास करंटली कॉल में बहुत सारे लीड्स हैं. हसान जिसने ओपनिंग की है, ही इज़ देयर. अलीना इज़ देयर फ्रॉम इस्लामाबाद. हमजा इज़ देयर. आई बिलीव आफ्ताब भी थे. सो वी हैव अ लॉट ऑफ लीड्स इन द कॉल. ये देखें, अब उमर ने कह दिया जी आप इनबॉक्स. इट्स जस्ट आस्किंग क्वेश्चन. उन्होंने आपको अपना नंबर भी दे दिया है. शहजाद, अगर इतने खास टेक्निकल स्किल्स नहीं भी हैं, दैट्स कम्प्लीटली फाइन. टेक्निकल स्किल्स 40% आपको केटर करते हैं. अपनी टीम में किसी टेक्निकल स्किल वाले पर्सन को ले आएँ. सोचें कि आप जो बनाना चाह रहे हैं क्या वो ऐप बेस्ड है या वो वेब बेस्ड है या वो कैसा सोल्यूशन, उसकी शेप कैसी है. एंड देन रीच आउट टू पीपल ऑन लिंक्डइन एंड से दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग, डू यू वांट टू जॉइन मी. शुरू में अजीब भी लगता है, लेकिन आई एम टेलिंग यू कि द मोर पीपल यू रीच आउट टू, द स्ट्रॉन्गर योर टीम इज़ गोइंग टू बी. इट्स लाइक यू जिस तरह हम हायरिंग करते हैं तो हम रिक्रूट करते हैं किसी को, आप वही रिक्रूटमेंट साइकिल अपनी टीम मेंबर सेलेक्ट करने के लिए भी कर सकते हो. अगर आपको यूनिवर्सिटी के कोई पेजेस हैं, कोई फोरम्स हैं, उनमें ज्वाइन करें. अगर आपकी फैकल्टी मेंबर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं तो फैकल्टी मेंबर्स को रीच आउट जाके उनको कहें कि आई वांट टू डू दिस, कैन यू कनेक्ट मी टू द राइट टीम.
यूनिवर्सिटी की फैकल्टी के लिए भी ये बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि उनकी यूनिवर्सिटी एक ग्लोबल लेवल के ऊपर रिप्रेजेंट हो रही है. So reach out to your faculty members and ask them. If you want me to help you with it, just drop me an email. I'm actually going to drop my email address here, so you all have it. So आप मुझे email कर सकते हैं. I can talk to your faculty members as well. राशिद ने भी अपना दे दिया है. So इन लोगों को reach out करें, LinkedIn पे reach out करें मुझे. Let's make this work. We'll make sure कि हम आपको right team members दे सकते हैं. So ये अभी हम FAQs पे आते हैं. शहजाद, तो you can talk about this. So ये कुछ विनर्स की पुरानी वीडियोस हैं. अगर ये यहाँ पे मैं वीडियोस प्ले नहीं करूँगी, बट यू कैन सी कि इट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. सिंगापुर, इंडोनेशिया, इंडिया, अभी हमने क्रिंजा की स्टोरी देखी थी, पाकिस्तान की. सो इट्स लिटरली पीपल फ्रॉम ऑल ओवर. तो आप ग्लोबली लेवल कम्पीट करें, एंड दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी. Let me just see. Oh no, it's going to play all these videos. अच्छा. So ये design sprint again ये website पे available है. You can have a look at it. I'm just going to post link here so that you can also see. इसको आप सेव कर लें. यहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन हम 5th और 6th को जो सेशन करा रहे हैं उसमें आपको इन डेप्थ एक डिज़ाइन एक्सपर्ट इन सब चीज़ों के बारे में गाइड करेंगे. तो आई वुड रिकमेंड कि आप उनके साथ ये चीज़ें भी करें, जिसमें पहले होगा कि यूज़र जर्नी कैसे मैप करनी है, कौन से प्रिंसिपल्स यूज़ करने चाहिए, उसको प्रेजेंट कैसे करना है, प्रोटोटाइप कैसे करना है, वैलिडेट कैसे करना है. दिस इज़ एन एक्सेलेंट एक्सरसाइज. there are a lot of content available जो कि ट्यूटोरियल वीडियोस हैं, डिफरेंट टेक एरियाज में भी काम हो रही है. ये सब कुछ वेबसाइट पे अवेलेबल है, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें आपको वो टाइम कंज्यूम नहीं करूँगी, सो दैट वी कैन टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एट द एंड. अच्छा, सो ये कुछ FAQs हैं, कुछ जो आपने भी पूछे हैं, तो आई थॉट कि मैं इनको भी एड्रेस कर देती हूँ. सो आते बस आप किसका है, हाँ मुझे 2 मिनट दें, उसके बाद हम क्वेश्चन जो है ना वो आंसर करते हैं. So can my solution solve a problem outside the scope of the 17 UNDP goals? Again, ये हमने पहले भी एड्रेस किया है, they cannot be. So make sure कि आप किसी एक गोल के अंदर फिट होते हैं, मल्टीपल में होते हैं. अपने सोल्यूशन में ये ज़रूर बताइए कि हम मल्टीपल कैटेगरीज को केटर करते हैं, लेकिन हम डोमिनेटली इस वाले गोल के अंदर सबमिट करें हैं. Can one team, one student submit multiple ideas? Not possible. आप सिर्फ एक टीम का पार्ट ले सकते हैं जो कि एक सोल्यूशन सबमिट करती है. ये कुछ लोगों का भी एक क्वेश्चन आया था कि अगर लीड हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे. उसका आंसर मैंने आपको ऑलरेडी कर दिया है. वेरी सिंपल, रीच आउट टू पीपल. सिर्फ इसको GDSC के थ्रू राउट करने का मेन मकसद ये है कि ये लीड्स पूरा साल प्रिपेयर करते हैं आप लोगों को इन चीज़ों में हेल्प करने के लिए. दे आर सिलेक्टेड थ्रू अ वेरी difficult process, और उसके बाद they are there to represent Google in Pakistan, right? So इन लोगों के साथ अगर आप reach out करोगे, they'll be help you, they'll be really helpful, और वो आपको help करेंगे in depth and in detail. Again, this is all online, तो इसमें as such आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. Google really आपको ये कहता है कि अगर आप in person मिल रहे हैं, discussions कर रहे हैं, तो make sure कि आप कोविड के SOPs को फॉलो करें, ये इन सब चीज़ों का ख्याल रखें. अच्छा जी, मुझे IC के क्वेश्चंस आ रहे हैं. हाँ, डेमो डे, अगेन ये वीडियो अवेलेबल है, अगर आप ऑनलाइन देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं. डेमो डे इज़ अ लॉट ऑफ फन. अगर मैं होती तो मैं पहले डेमो डे की वीडियो देखती, फिर सोल्यूशन बनाना शुरू करती. ये दोबारा मैं स्केड्यूल स्क्रीन पे छोड़ रही हूँ. अच्छा, रमीज कह रहे हैं जी प्रोजेक्ट. सो दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन कि क्या फुल फ्लेज प्रोजेक्ट होना चाहिए या जितना हो सकता है उतना होना चाहिए. तो इसमें आप देखेंगे पहली चीज़ तो ये कि आपका सोल्यूशन बेसिक जो आपका प्रॉब्लम है उसको केटर करे, बेसिक सिंपल फीचर्स के साथ. लेकिन जो आपकी वीडियो है उसमें आप एक्सप्लेन करें कि आपका लॉन्ग टर्म फ्यूचर स्केलेबल प्लान क्या है. तो अगर वो एक सिंपल एप्लीकेशन है जिसमें मैं अपना डेटा डाल रही हूँ, वो एक एस्पेक्ट में चली गई है, दिस इज़ द फर्स्ट फीचर. इन द फ्यूचर मेरे डेटा के बेसिस के ऊपर मुझे क्या क्या फीचर्स अवेलेबल होंगे, अगर आप वो बता रहे हैं तो यू आर ओके. सो ट्राई टू डू एज मच एज यू कैन. बेसिक आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो सॉल्व होना चाहिए. एडिशनल फीचर्स आप लेटर इंट्रोड्यूस कर सकते हो. अच्छा आदिल, आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन बता सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम.
फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे यूनाइटेड नेशन के हमारे पास 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो अब क्योंकि 17 काफ़ी ज़्यादा हैं, इसमें से स्पेसिफिकली हर एक के ऊपर अगर सर्च करने में बैठेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम है। तो मैं ये पूछ रहा था कि रिकमेंडेड कौन सा है, कि किसके ऊपर ज़्यादा इफेक्टिव होता है। कि आज से पहले भी टीम्स गई है और उन्होंने इसके ऊपर किए हैं और प्रीवियसली भी है, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि रिकमेंडेड कौन सा है, यानी कि टेक्नोलॉजी हेल्थ में जाए, वाटर में जाए या इंडस्ट्री में, तो आप इस पे थोड़ी सी। Good. So that's a very, very good question actually. Interestingly, इनमें से कोई भी एक, या ऐसे नहीं है कि अगर आप एक का पार्टिसिपेट करेंगे तो उसमें आपको वेटेज ज़्यादा मिलेगी। आप जिसको भी सिलेक्ट करेंगे दैट्स कम्प्लीटली फाइन। इट मेक्स सेंस कि 17 गोल्स हैं, कौन से पे फोकस किया जाए, और इन डेप्थ ऑफ कोर्स टाइम यू नो उसको करने में टाइम लगता है। तो आई थिंक ये पहली चीज़ तो ये पहला स्टेप जो हमारा नेक्स्ट सेशन है UNDP वाला, उसमें पार्टिसिपेट करें। आई बिलीव कि February 22nd यहाँ आ रहा है, इसको हम थोड़ा आगे मूव भी कर सकते हैं सो दैट आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सको। उस सेशन में 1 घंटे के अंदर आपको 17 गोल्स की इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो दैट्स एक्सलेंट, राइट? आपका एक काम हो जाएगा। दूसरा एक और तरीका जो मेरे लिए आई थिंक ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इसके आई एम अगेन गोइंग टू शेयर माई टैब। सो आई एम गोइंग टू लुक एट दिस एंड आई अंडरस्टैंड कि अच्छा मैं एज अ पर्सन किस चीज़ के साथ ज़्यादा रिलेट करती हूँ। अगर मैं इसको ओवरऑल देखूँ तो मैं किन चीज़ों के ऊपर काम करना चाहूँगी, या पाकिस्तान में कौन सी ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है। सो आई नो कि हंगर इज़ अ प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। दिस इज़ वन थिंग दैट आई कैन वर्क ऑन। अगर मैं अपने लिए देखूँ, मैं हमेशा से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती थी। तो जेंडर इक्वालिटी अगेन वो चीज़ है जो मैं पर्सनली रिलेट कर सकती हूँ। तो कोई एक दूसरे से बेहतर नहीं है, लेकिन आप जितना उसको अपने पर्सनल गोल्स और वैल्यूज़ के साथ रखोगे उतना आपके लिए आसान होगा। और अगर आपका सोल्यूशन है और उसको आप किसी में फिट करना चाह रहे हो तो दैट्स इवन ईजियर, यू नो। आई होप दैट इज हेल्प। You can, yes, you can, Usman, for sure. Again, it's all about how you're relating it and how you're justifying it, for sure. I personally think कि मतलब ये अगेन एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इसको जितना आप वेल रिलेट करेंगे, जितना आप बेहतर एक्सप्लेन करेंगे कि हम ये यूज़ करें इसको एड्रेस करने के लिए, और उसके साथ साथ हमारा जो फ्यूचर गोल है उसमें हम ये टेक्नोलॉजी भी लेके आ जाएंगे या ये भी इंकॉर्पोरेट करेंगे, उतना आपका यूज़ केस स्ट्रॉन्ग होगा कि आपने मल्टीपल टेक्नोलॉजीज को स्टडी करके फिर एक एरिया जो है वो चॉइस ऑफ एरिया आपका है। लेट्स सी एनी अदर क्वेश्चन। अच्छा, यस, सो हमाद दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल। ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए दिखाया था कि आप इनमें से कोई भी पिक कर सकते हैं। यू कैन पिक एनी ऑफ द गूगल टेक्नोलॉजीज। जो मैंने आपको दिखाई थी वो मोस्ट हाईलाइटेड है, विच इज़ वाई उनमें से कोई एक ना एक तो समहाउ वो यूज़ में आ जाती है, लेकिन यू कैन यूज़ एनी गूगल टेक्नोलॉजी। आइडियली यू शुड यूज़ द वंस जो कि ज़्यादा पॉपुलर हैं, बिकॉज उसमें ऑफ कोर्स फीचर्स इंटीग्रेशन ज़्यादा आसान है, उसमें जस्टिफिकेशन ज़्यादा आसान है। Currently, you would see that a lot of solutions are being built on Android, so that's one thing that we strongly encourage, but you can use any. That's completely up to you. Do we have any other questions? कोई और सवाल जो हम देख सकें, cater कर सकें? So, Talha, I'll answer your question next. So, Ajmal, कोई भी एक जो है वो सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड नहीं है, सब आर इक्वल। हर कंट्री में डिफरेंट ज़्यादा यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल मे बी टर्की के अंदर कोई एक ज़्यादा रेलेवेंट होगा, इंडिया के अंदर दूसरा पॉवर्टी वाला ज़्यादा होगा, पाकिस्तान के अंदर तुम किसी और चीज़ पर फोकस करते हैं। तो कोई एक ज़्यादा प्रेफर्ड नहीं है, आपने जो आपके पर्सनल लेवल पे आप उसके साथ ज़्यादा रिलेट करते हैं वो वाला यूज़ करना है। एंड देन अर्शद सेज, कैन वी गेट पुराने जो टॉपर्स हैं उनके सोल्यूशन? सो येस, इफ़ यू गो टू द वेबसाइट देयर आर वीडियोज़ के अंदर वो अपने सोल्यूशन के बारे में भी बात करते हैं, उनका सोल्यूशन क्या है, यू कैन फाइंड दैट there as well. Umar, you can just unmute yourself. अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, हमारी कंट्री में एक से ज़्यादा मसाइल हैं जो मैंने इसको देखा, तो कम से कम 17 में से मेजॉरिटी ऑफ जो प्रॉब्लम्स है वो हम खुद फेस कर रहे हैं राइट नाउ।
अगर अगर चाहें तो कम से कम 5 to 6 प्रॉब्लम्स अगर हम एक ही प्रोजेक्ट में यूज कर सके तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो हम उसे इस देखें। तरीके से कंबाइन करें हम्म। कि हमारा सॉल्यूशन जो है 5-6 प्रॉब्लम को मतलब कि यूज करते हुए वो एक सॉल्यूशन क्रिएट कर रहा हो, ताकि हम जस्ट एक सॉल्यूशन पे फोकस ना करें। एक सॉल्यूशन को यूज करते हुए हम बाकी सॉल्यूशन को भी मतलब थोड़ा सा सॉल्यूशन कर पाए। मतलब मैं जैसे ये कह रहा अंडरस्टैंडेबल। सो अगेन मैंने मैं आपको जब दिखा रही थी तो उसका मेन मकसद ये था कि यू अंडरस्टैंड कि बहुत सारे आपस में रिलेटेबल होता है, लेकिन मैं आपको जो पर्सनली रिकमेंड करूंगी सिर्फ एक के ऊपर फोकस करें। जब वो मांग एक रहे हैं तो आप ज़्यादा देख क्यों रहे हैं? You know, if they're asking for one and if you're getting 10 scores for selecting one, just select one. आप ज़्यादा करेंगे, आपकी उतनी ऑडियंस डाइवर्सिफाई होगी, उतना आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप इस वाले के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो या उसके ऊपर कर रहे हो, तो लैक ऑफ फोकस इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो आई थिंक सोल्यूशन बिल्ड करने में इनिशियली मे बी आप जब सोचोगे तो इट वुड नॉट बी दैट डिफिकल्ट, लेकिन जब एक फोकस करें उसको जस्टिफाई करें, आई थिंक यूर ओके। जी रमीश, ऑफ कोर्स दिस इज अ गूगल सोल्यूशन चैलेंज, सो दैट्स द पॉइंट कि वो अपनी टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करें। ऑफ कोर्स दैट्स द मेन ऑब्जेक्टिव, दैट्स व्हाट दे ट्राई एंड encourage. आई एम जस्ट गोइंग टू क्विकली ड्रॉप दिस अगेन। ये लिंक्स सारे आप एक लिंक पे जाओगे सारे आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, दीज विल केटर टू इट, टाइमिंग्स कौन से हैं, एंटर कैसे करना है, इसमें जो टेक्नोलॉजीज हैं उन्होंने मेंशन किया है। मैं ये भी आपको कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, बल्कि एक्चुअली आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर दिस टैब। सही है। तो यहाँ पे आप ये देखें कि वो ये कह रहे हैं जी, यूज ऑफ वन और मोर गूगल प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू। इसका मतलब है कि इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ है आप उस पर काम कर सकते हो, लेकिन ये जो मेन है, और मेरा पर्सनली ख्याल है कि अगर उन्होंने मेन हाईलाइट किए हैं तो इसका मतलब है कि दे वांट कि आप इनके बारे में पहले सोचें और दूसरों के बारे में बाद में सोचें। सो जस्ट टू शो यू हियर, आपने यूट्यूब वीडियो बनानी है, वीडियो के अंदर क्या क्राइटेरियाज हैं वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। जजिंग मैंने आपको ऑलरेडी क्राइटेरिया दिखा दिया है, वेबसाइट पे अवेलेबल है, डेट्स यहाँ पे मेंशन है, क्राइटेरिया जो मैंने आपको दिखाया था एवरीथिंग यू कैन फाइंड हियर, प्राइजेस, everything you will find on this link, so have a look. इसके अंदर if you go to past winners, so this was a question that I think who had this question, one of you had a question, sorry I forgot your name. So इसके अंदर you will find all of them here कि उनके क्या आइडियाज थे। ये लास्ट 3 जो हमारे टॉप 3 लास्ट टाइम के थे वो थे फिलीपीन, साउथ ईस्ट एशिया में आता है। हम बहुत खुश थे जब इफ़ यू सी कि साउथ ईस्ट एशिया में 2 जो थे वो हमने विनर्स थे, विच इज़ एक्सलेंट। तो सिंगापुर का था, फिलीपींस का था, इनमें से एक्चुअली कुछ सोल्यूशंस आप पाकिस्तान के लिए बड़े आराम से केटर कर सकते हैं। सो हैव अ लुक एट दिस। अगर आप यूट्यूब सर्च करोगे आपको और सोल्यूशन के आइडियाज़ भी मिल जाएंगे। ब्लॉग पोस्ट उन पर कैसी थी, यू विल फाइंड इट हियर। और ये डेमो डे एक, आई थिंक ये अब मुझे इसकी ड्यूरेशन में एक दफ़ा चेक कर लेती हूँ, तो इट्स 2 hours लॉन्ग। आराम से आप इसको देखें, स्किप करें जो चीज़ें आपको नहीं लगती, लेकिन जो टॉप 10 टीम्स हैं उनकी पिचेस देखें, उससे आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। लास्ट ईयर भी जो मेन थे वो यूएनडीपी गोल्स पे काम हो रहा था, सो यू कैन जस्ट गेट अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर अगर आपको पता नहीं है कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, आई एम जस्ट गोइंग टू क्विकली सी अगर हम कोई ऐसी चीज़ जो हमने स्किप कर दी है। हाँ, एक और क्वेश्चन जो मुझे इससे ख्याल आया है, इसके अ लॉट ऑफ पीपल आस्क दिस कि अगर मैं अपना आइडिया शेयर करूँगा, ये करूँगी, तो कहीं वो स्टील ना हो जाए या कहीं वो कॉपी ना हो जाए। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये जो आपका पूरा 100 मार्क्स का क्राइटेरिया है, इट्स वेरी एक्सटेंसिव। तो अगर आपका कोई आइडिया कॉपी कर भी लेता है तो उसकी जस्टिफिकेशन, उसको आप टेक्स्ट से कैसे सपोर्ट करते हैं, वो बहुत डिफरेंट होगी। सो डू नॉट बी वरीड अबाउट इट। अपने आइडिया को शेयर करने में बिल्कुल भी हेजिटेशन आपकी नहीं होनी चाहिए। यू कैन कम्प्लीटली शेयर योर आइडियाज़ विद the GDS elites, with me. If you don't feel comfortable asking questions in public, feel free to do that. The more questions you will ask, the better everything will be. I'm going to quickly share this again. आप इसका screenshot ले लो। I believe कि ये social media पे Solution Fest पे already posted है।
this is only for Pakistani audience. सिर्फ हम पाकिस्तान के लोगों को support कर रहे हैं. 200 people have already entered. If you have not registered yet, please do it. Solution Challenge पे जाएं, वहाँ पे register करें, सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा. And that's pretty much it. Hassan, Alina, Aftab, do you have anything to add? Oh, I can add one thing. Everybody gets a participation certificate. So I think that is excellent. Getting something like this from Google is also very, very nice. So also just another incentive. ठीक है. I think we have covered everything. हाँ, swag. So yes, at the end of, if you participate in all the sessions and if you submit your final thing, there is swag. So our team is working on it. तो वो भी आपको मिल जाएगा. किसके साथ शेयर करेंगे? शहजाद, ये सॉल्यूशंस आपने सॉल्यूशन चैलेंज की वेबसाइट पे सबमिट करने हैं. अगर आप अपना आइडिया शेयर करना चाहते हो, आप किसी के साथ भी कर सकते हो. हमारे लीड्स ने अपना लिंक्डइन भी यहाँ पे ड्रॉप किया, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, आप मेरे साथ कर सकते हैं. आगे हमारे पास जितने भी ट्रेनर्स हैं, आप उनके साथ कर सकते हैं. You can share your ideas with them. They will be able to help you out as well. I personally am helping out a lot of teams. Just ping me. I'll be happy to have a look. ठीक है. I think that we have covered everything. Let's make Pakistan really, really proud. I am super excited for it. I think this is such an excellent, opportunity, and you all are so talented. So let's do this. We need to. So Ramesh, यहाँ पे मैं आपको दोबारा वापस लेके आऊँगी. The goal is not to only get a certificate. The goal is to win this. And to win this, you need to have a proper submission. आपके मेन चीज़ें जो हैं, जो मेन उन्होंने जजिंग क्राइटेरिया में जो टेक्निकल पार्ट है, इट सेज कि आपका वर्किंग सोल्यूशन होना चाहिए. तो अगर आपका वर्किंग सोल्यूशन नहीं होगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. तो उसमें सर्टिफिकेशन की तो फिर बात ही नहीं आती. सो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल कि the motivation that we have is right. जी उमर, please feel free to ask your question. मैम मैंने माइक ऑन किया, सॉरी फॉर दैट. नहीं, no worries. मैम मेरे घर के पास फास्ट यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है, एंड ये जहाँ से फास्ट तो हमारे पास बहुत सारे हैं. कौन सी सिटी? मैम जहाँ से आपने जो वीडियो प्ले किया है मैम किन्जा का, कराची. ठीक हो जी, कराची से हूँ. तो मैम मैं वैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, बट मैम वहाँ मैं GDSE VU का भी स्टूडेंट हूँ, तो मुझे एंट्री अलाउ नहीं है मैम. तो ऐसा पॉसिबल है कि आपके एंड से कोई परमिशन मिल सके ताकि मैं GDSE VU, हमारी घर के पास यूनिवर्सिटी वहाँ भी हो रहा है, मैं वहाँ से हेल्प ले सकूँ, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी में मीटअप नहीं हो पाता, दोस्तों से नहीं मिल पाता. अगर मेरा आइडिया अच्छा लगता है तो क्या मैं वहाँ जाके भी एक बना सकता हूँ? अगर ऐसा पॉसिबल है तो प्लीज मेरी हेल्प हो सकती है तो मैम प्लीज डू इट. अच्छा, सो उमर आप ये करें, मैंने अपना ईमेल एड्रेस ड्रॉप किया था. जस्ट ड्रॉप मी एन ईमेल. आई विल कनेक्ट यू विद आवर लीड. शी इज नॉट इन द कॉल राइट नाउ. वी विल सी अगर हम वो कर सकते हैं. आई एम ऑल्सो कनेक्टेड टू देयर फैकल्टी मेंबर, सो आई विल ट्राई टू. अगेन आई डोंट प्रॉमिस, लेकिन मैं कोशिश कर सकती हूँ. आप मुझे ईमेल कर दो प्लीज. ठीक है. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. वंडरफुल. हसन ने बहुत इंपॉर्टेंट लिंक शेयर किया है. हैव अ लुक एट दिस. इसमें आपको अपना नियरेस्ट GDSE चैप्टर मिल जाएगा. हमारी मेजर सिटीज़ में देयर आर मल्टीपल चैप्टर्स, स्मॉल सिटीज़ में भी रिप्रेजेंटेशन है. अगेन अगर वो नियरेस्ट नहीं भी है, आपका ऑनलाइन उनके साथ कनेक्शन हो गया है, यू कैन स्टिल टेक पार्ट इन दिस. आई थिंक दैट्स प्रीटी मच व्हाट इट इज़. हम 1 मिनट ऊपर हो गए हैं. आई अपोलोजाइज फॉर दैट. अब हम आपको इवनिंग आपकी वापस कर देते हैं. गुड लक. प्लीज़ नो कि हम सारे आपके साथ आपको हेल्प करने के लिए अवेलेबल हैं. आपने सिर्फ क्वेश्चन पूछना है, आपने लोगों को तंग करना है. अगला 1 महीना लोगों की ज़िंदगी अजाब कर दें, लेकिन ट्राई टू बिल्ड समथिंग जो कि लोगों के लिए हेल्पफुल हो. अगर हम टॉप 3 में नहीं भी आते, अगर वो सोल्यूशन ऐसा है जो लोगों की लाइफ में चेंज